Hello everybody. So now the different kind of actions that takes place. कौन से actions होते हैं? Reflex actions, involuntary actions, voluntary actions. Reflex actions जब हम किसी चीज़ के अगेंस्ट में, किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं ऑल ऑफ सडन और समथिंग सम काइंड ऑफ समटाइम्स जबकि हम उस स्टिमुलस को बिना समझे भी रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. देन इनवॉलंटरी एक्शंस विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, जैसे हार्ट बीट इनवॉलंटरी एक्शन, then digestion of food involuntary action, then voluntary action, I am moving my hand, this is voluntary action. So all these are the different kinds of actions in which reflex action sometimes आपको लगेगा कि कुछ involuntary type का है. कैसे? So reflex actions are what? Spontaneous, all of sudden कहीं पे होगा reflex action and it will be automatic. कोई पता नहीं है कि कोई रिफ्लेक्स एक्शन होने वाला है, कोई स्टिमुलस और हम रिफ्लेक्स एक्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो इट्स रिफ्लेक्स एक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल, बॉडी के पार्ट्स में होगा बाय द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिफ्लेक्स एक्शंस के विदाउट विल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हमारी कोई विल नहीं है इसके अंदर, बट रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑटोमेटिक, स्पॉन्टेनियस एंड मैकेनिकल. इसमें हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते. What are the examples? Blinking of eyes. हमारी eyes naturally after some time blink होती है. Why? Because our eyes need rest. तो blinking of eyes is a reflex action. इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते. And movement of diaphragm. जो diaphragm है हमारा respiratory system में के lower side में जो muscles हैं, those moves during the inhalation and exhalation. So that is movement of diaphragm. Withdrawal of hand. Suddenly हमने कुछ hot object touch किया, all of sudden removed our hand, withdrawal our hand. That is also reflex action. Coughing. खांसी हो रही है, गले में दर्द है. There is not any control. This is because of some kind of irritation in our neck region, throat region. So that is coughing. Then yawning. नींद आ रही है. Oh, this is what? Yawning. उबासी बोलते हैं हिंदी. So that yawning is also kind of reflex action. Sneezing. Suppose all of a sudden कुछ irritation nose में होती है, nostrils में, and we अच्छू करते हैं, sneezing. That is what? All these are reflex action. All these are. Sometimes हमें लगता है कि कुछ involuntary kind of है, but mainly all these are reflex action जो किसी न किसी stimulus के against में हमारी body response करती है या कुछ reason से करती है. अब इस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एक प्रॉपर पाथ है. देयर इज अ प्रॉपर पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, सो दैट वी विल टच बाय टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. सपोजिंगली दिस इज अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑफ सडन आई हैव टच्ड इट. व्हाट आई विल डू? आई विल रिमूव माय हैंड. सो देयर इज अ प्रॉपर पाथ दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन. रिसेप्टर्स रिसीव अ स्टिमुलस, हॉट ऑब्जेक्ट टच किया. अब यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं, दैट receptors feel that stimulus and pass on that stimulus impulse to the sensory nerves. receptor ने किसे pass on किया? sensory nerves को. अब receptors के पास ही हैं sensory nerves. those neurons then receives the impulses and carries those impulses towards the brain and spinal cord. central nervous system का part है brain and spinal cord. तो वो नर्व इम्पल्सेस सेंसरी न्यूरॉन ने कैरी किया. सेंसरी न्यूरॉन ने यहाँ से क्विकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पहुँचा दिया. अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज एंड इंटरप्रेट सच काइंड ऑफ नर्व इम्पल्सेस कि क्या है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे रिएक्शन करना है. देन मोटर न्यूरॉन. अब उसने इंटरप्रेट कर दिया. अब मोटर न्यूरॉन को मैसेज जाएगा इम्पल्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मोटर इम्पल्सेस. यहाँ पे था सेंसरी इम्पल्स और यहाँ पे क्या है? मोटर इम्पल्स के फॉर्म में the messages will transmit towards the motor nerves. अब motor nerves brain और spinal cord से connected हैं. Then motor neurons carries those motor impulses towards the effectors. Effectors क्या है? Muscles हैं which are found on those part. यहीं पे effectors हैं, muscles हैं, and we will move out our fingers. So this is what? Palm. This is what? Our response. So there is a proper arc, proper path for the reflex action. Because in the reflex action there is use of brain also. Then only we
we show such kind of response. अब इन रिफ्लेक्स एक्शन में जहाँ ब्रेन वर्क करता है वो सेरेब्रल रिफ्लेक्स हो गया, और जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है वहाँ पे स्पाइनल रिफ्लेक्स हो जाता है. नाउ आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन. अगर हमने हॉट ऑब्जेक्ट को लगातार ही टच करे रहेंगे तो हमारे हैंड जल जाएंगे. सो रिफ्लेक्स एक्शन इज नेसेसरी because it protects our skin, our body from any kind of burn, okay, that can be dangerous. Now reflex action के बाद हमारा हो गया involuntary and voluntary action. Involuntary action हमारा respiration, breathing, heart beat, blood pressure, salivation. अच्छा food देख के जो हमारा saliva आ जाता है, yes, there is some kind of tasty food and all of sudden भी salivation is there, saliva निकलता, that is इनवॉलंटरी एक्शन. इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कितना भी हम चाहते हैं. सो एंड वॉमिटिंग समटाइम्स, एंड इंटरनली जो बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें अंदर जैसे ब्लड मूव होती है या फूड मूव होता है, ऑल दोज आर इनवॉलंटरी. ना वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शंस कम्प्लीटली हमारे विल के ऊपर है. हम चाहते हैं तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे. वॉकिंग वॉलंटरी एक्शन. देन wearing something, कैसा क्लोथ पहनना, that is voluntary action. Writing voluntary action. I am making this video, that is also voluntary action. Involuntary action नहीं है, चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे. And you know there are different parts of the brain which takes part in all such kind of actions. जैसे कि हमने reflex action में brain and spinal cord पढ़ा, तो ऐसे ही इनवॉलंटरी एक्शन में कुछ पार्ट ऑफ ब्रेन वर्क करेगा, वॉलंटरी एक्शंस में भी कुछ पार्ट ऑफ ब्रेन वर्क करता है. दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट आवर नर्वस सिस्टम. सो इस तरह से हमारे नर्वस टिश्यू वर्क करते हैं, एक्शन करते हैं. बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेन रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज देयर. दैट वी विल डिस्कस लेटर. टिल दैट बाय बाय.